प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? नोटबुक दिखाओ। प्रीवियस क्लास में क्या किया था? जी सेल थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी करवा दी थी। जी सेल थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी वाली, मैच्योरेशन वाली, थ्योरी ऑफ इनसाइट, growth and maturation. Okay. Today we have to begin with our Kohlberg and Erickson theory. Then your first minute would be over. Erickson कहाँ कर रहा है? Moral development theory. लिखो, इसके बारे में लिखो. What do you mean by the moral development? Firstly, what is moral development for you? If we are talking about the moral development, ethics. किसी भी तरह का moral development जब कैरियर को नहीं होता है, मतलब गरीब, मतलब वो फैमिली से बिलोंग करता है, कई तरह से रिच है, तो उस तरह बच्चे को moral development के लिए जो भी मतलब सहायक चीजें होती हैं जो दिया जाता है, मतलब समझाना, तो उसका moral development में आता है. समझा, वही तो मैं पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय मॉरल डेवलपमेंट? बेसिक वैल्यू, एथिक्स. एथिक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स? If you are saying ethics, in the moral development we teach ethics to our children. So what do you mean by the ethics, the ethnic values? The difference between right and wrong, basically. What is right for the society, what is right for yourself, and what is wrong as well as. So this is your moral development, when a child knows what is right and what is wrong, either at the house or in the society, in the larger scale or in the smaller scale. He knows that by saying a lie I am doing right or wrong thing. Wrong thing. तो ये सब चीजें उसको कैसे पता है कि वो अगर झूठ बोल रहे तो वो गलत कर रहा है? क्योंकि उसे ये सिखाया गया है. किसने सिखाया है? सबसे पहले फैमिली, फिर सेकंड में एनवायरनमेंट में कौन सी आ जाती है हमारी? फ्रेंड्स, नेबरहुड, स्कूल, टीचर्स, ये हमारा सेकंड एनवायरनमेंट हो जाता है. तो फिर व्हाट डू यू मीन बाय मॉरल बिहेवियर एंड मॉरल कॉन्सेप्ट? ये दो अलग अलग चीजें हैं. अब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है हमारा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉरल बिहेवियर और मॉरल कॉन्सेप्ट? Moral behavior is a behavior of a child at any stage. Whatever he is doing, either it is adjustable in the society or not. That is the behavior of the child. It can be negative or it could be positive. Both the sides चलता है ये. Moral concept, when a child knows what is wrong and what is right, and he has adapted the values. If according to him telling a lie, if you are getting any benefit, it's right. क्योंकि उसने वही सीखा, तो वो उसके लिए सही होगा, क्योंकि वो उसने कॉन्सेप्ट को गेन कर लिया. व्हेन यू परसीव एनीथिंग इन योर माइंड, तो दैट इज योर मॉरल कॉन्सेप्ट. जब आप किसी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को अपने माइंडसेट में कर लेते हैं कि यही सही है या यही गलत है. जो चीज मेरे लिए सही है जरूरी नहीं वो हर किसी के लिए सही हो सकता है जो चीज आपके लिए सही है वो मेरे लिए गलत हो. तो ये जो मॉरल कॉन्सेप्ट हमारे बने हुए हैं, ये कौन सी स्टेज से शुरू हो जाते हैं हमारे? Early childhood. That means at the beginning of the 2 years, we begin with our thinking of right and wrong. At the small scale or the larger scale, it depends on your age. So write down the heading, stages of moral development, and I'm giving you some stages. Make 3 rows like this. ये चल नहीं है ऐसे करके 3 कॉलम बना लो अपने और ऊपर हेडिंग दे दो मॉरल डेवलपमेंट. First rate level, stage, second age range, and third is your description. We will just begin with the brief introduction. First stage कौन सी है हमारी इसमें? Conventional stage, pre-conventional stage, right? That is your stages. That is something else. In the Kohlberg has divided these stages into the 6 categories,
and that 6 categories are divided into the 3 major categories. So we are doing in the detail right now. The first is your pre-conditional. जो दिया हुआ है हिंदी के रूप में, इसमें 7 टाइप ऑफ मतलब डेवलपमेंट दिया हुआ है। स्टेजेस ये होंगे आपको एज वाइज, स्टेज वाइज भी आएगा ना इसमें। एज रेंज स्टेज वाइज होगी ना आपकी। एग्जाम में क्वेश्चन आए डेवलपमेंट के हिसाब से ग्रुप में जो स्टडी किया हुआ है तो मुझे 7 टाइप होते हैं और उसी से रिलेटेड बहुत 7 टाइप्स ही होते हैं, लेकिन उनकी जो एजेस होती हैं वो एज डिस्क्रिप्शन में आएगी आपकी, जो उनका लेवल है और जो स्टेज है वो इसमें आएगा और डिस्क्रिप्शन वहां आएगी। ऐसे करके टेबल बना के इसी टेबल को एक्सप्लेन करना आपने एग्जाम में। फर्स्ट इज योर प्री कन्वेंशनल। व्हाट इज प्री कन्वेंशनल स्टेज? प्री कन्वेंशनल स्टेज, what do you mean by pre-conventional and why we have given the name pre-conventional to it? हमने से conventional क्यों नहीं बोला है? बताओ pre-conventional क्या होता है? When the control of the child is totally in the hand of the external force. Yes, parents. Whatever you will teach to your child, this is right, this is wrong, he will enhance it. वो अपने अंदर उन चीजों को ग्रैब कर लेता है कि ये मम्मी ने बोला ये सही है और ये बोला गलत है, तो वो वही चीज को अपने माइंडसेट में कर लेता है। दैट इज प्री कन्वेंशनल। कन्वेंशनल स्टेज होती है जिसमें आपका इंटरनल मोटिवेशन आ जाता है। एक्सटर्नल फोर्स इज सेम, योर एक्सटर्नल फोर्स इज सेम, योर पेरेंट्स आर टीचिंग यू, योर टीचर्स आर टीचिंग यू, बट योर इंटरनल मोटिवेशन हैज बीन अराइव्ड इन योर बॉडी। नाउ सेल्फ क्रिएटेड हो जाते हो, अब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आ जाता है कन्वेंशनल में कि नहीं ये मुझे करना है, दिस इज राइट एंड आई हैव टू बी राइट इन द, इफ आई वांट टू एडजस्ट इन द सोसाइटी आई हैव टू बी राइट। अगर मुझे घर में रहना है तो मुझे ये सही और गलत सीखना पड़ेगा, तो हम वो सीखते हैं। कई बार होता है कि सही चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम वो सही चीजें करते हैं क्योंकि वी हैव टू एडजस्ट इन आवर फैमिली, वी हैव टू एडजस्ट इन आवर सोसाइटी, इन फ्रेंड सर्कल, वॉट एवर द सर्कल वी आर हैविंग। स्कूल में भी आप हमेशा तो अपनी मर्जी नहीं चला सकते ना कि आज मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। यू नो दिस इज रॉन्ग, आई एम हियर टू टीच, तो आई हैव टू टीच, दैट इज राइट। दैट्स व्हाई यू फॉलो ऑल द राइट थिंग्स एंड द रॉन्ग थिंग्स। चाहे आपका इन्वायरमेंट स्कूल हो, फैमिली हो, फ्रेंड सर्कल है, सोसाइटी है, कोई भी हो, जो आपके अंदर से मोटिवेशन आने लग जाता है दैट यू हैव टू फॉलो द राइट थिंग्स। कई बार हम गलत भी कर देते हैं तो हमारे अंदर एक गिल्ट आ जाता है कि ये मैंने गलत कर दिया है या मैंने गलत बोल दिया है, तो व्हाट वाज दैट, क्या होता है वो चीज, वो इसके अंदर की स्टेजेस है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। प्री कन्वेंशनल में ना आपको एक्सटर्नल फोर्स बताती है कि ये सही है और ये गलत है, वॉट एवर यू हैव डन, ये तो आपने गलत किया है या ये आपने सही किया। एप्रिसिएशन, पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों होता है उसमें, गाइडेंस मिलती है उसमें। यस, लर्निंग पीरियड, एग्जैक्टली, वो लर्निंग पीरियड है आपका। यस, और जो कन्वेंशनल में आ जाते हैं तो आपके एक्सटर्नल के साथ इंटरनल भी हो जाता है। नाउ यू आर ग्रोन अप, नाउ यू कैन थिंक कि आप जो कर रहे हो वो सही है। अब इससे ना बच्चा अपनी सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढने लग जाता है कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, क्योंकि वो हर बार डिस्कस भी नहीं करता किसी से इस स्टेज पे आके, तो उसे खुद ही करना पड़ता है कि ये सही है और ये गलत है। चाहे उसे लेटरली पता चलेगी जो मैंने सही किया था वो गलत था, लेकिन वो खुद ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करता है इस वाली स्टेज में। दैट इज योर कन्वेंशनल। इन द पोस्ट कन्वेंशनल व्हाट इज इट, जिसे आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस और एनवायरनमेंट लगते हैं। इंटरनली भी आपको करना पड़ता है कि क्या ये जो बता रहे हो सही है, क्या ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। जब इस स्टेज पे आ जाते हो, जब आप अपनी थिंकिंग लगाने लग जाते हो, दैट इज योर पोस्ट कन्वेंशनल। इट मीन्स now you are big enough, you are mature enough to take your own decisions. Now you don't need external forces to guide you. Now आप कहते हैं ना हम सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं। Now you don't think about the me, family or friends, you think about the society. How can I improve the society? How can I help the society? By doing the right things. How can I improve, I can develop my society by doing the right things. That is your post conventional stage. So these 3 stages has been divided into the 7 categories we will do now. Now your first stage is your infancy stage.
It comes under the pre-conventional. In the pre-conventional, we have two stages. That is your punishment and obedience, in which the child knows that if I will not obedient, I will get punishment. Infancy stage होती है, in which he knows if he will be there is no difference between doing the right task or the wrong task. उसे नहीं पता कि सही गलत क्या है, but उसे ये पता है कि अगर मैंने ये किया, if I will do this, I will get the punishment. If I will do this, I will get the reward. So he do the work according to the punishment and the reward. He doesn't know what is right and what is wrong, but he do the work for the reward and the punishment basis. ओ हाँ, ये डिस्क्रिप्शन में आता है, इन्फेंसी की डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। ठीक है, देन योर सेकेंड स्टेज इज देयर सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट आपकी कौन सी एज में आ जाती है? प्री स्कूल, किंडरगार्टन स्टेज। When the child begins to know what is their interest, उसे पता चल जाता है कि उसका इंटरेस्ट जो है पनिशमेंट की तरफ नहीं है। नाउ हिज इंटरेस्ट हैज बीन शिफ्ट टुवर्ड्स द रिवॉर्ड। किंडरगार्टन में देखें ना, टॉफीज देते हैं हम, चॉकलेट्स देते हैं, क्यों देते हैं? रिवॉर्ड बच्चों को। उन्हें कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? रिवॉर्ड से। नाउ his focus has been shifted. Now he is not focusing on what he is doing. He is focusing on the punishment and the reward. If I will do this, I will get punishment. If I will do this, I will get the reward. I will get the clapping. तो बच्चे भी खुश होकर बताते हैं ना, आज मुझे चॉकलेट मिली, आज मुझे टॉफीज मिली। तो that's how we motivate them, because it is an external force. External force उन्हें motivate करती है to do the right things or wrong things as well. If you are appreciating them in the wrong one, so they will become the wrong. ठीक है, it depends on you how you are appreciating them, how you are giving them reward and punishment. Clear? ये दो स्टेजेस क्लियर हुई, इन्फेंसी और प्री स्कूल। ओके, अब इसमें लिखो इंटरेस्ट शिफ्ट interest shifts to rewards rather than punishment. पहले वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड में डिफरेंस करता था, ये मैंने किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी और ये मैंने किया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। अब उसका फोकस हो गया कि मुझे रिवॉर्ड चाहिए, मुझे क्लैपिंग चाहिए, मुझे टॉफीज चाहिए या चॉकलेट चाहिए। नाउ ही डजंट वांट टू हैव पनिशमेंट। अब उसका पनिशमेंट की तरफ ध्यान नहीं है। नाउ ही इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स टू गेट व्हाट? टू गेट द रिवॉर्ड। एफर्ट्स किसके लिए हो रहे हैं? एफर्ट इज टू मेड ये to secure benefit for oneself. बेनिफिट वो oneself से इधर मतलब है, अब उसी का बेनिफिट हो रहा है ना, अगर उसे रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो he will get appreciated, he will get the rewards, he will get the highlight. Now the child begins to think about the himself, that I will be the class monitor, I will be the good child, I will come in the good books of the teacher. Now she will appreciate me, she will say something good about me.
और इन द हाउस ऑल्सो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब हम कुछ रिवॉर्ड देते हैं तो वो और अच्छे काम करते हैं, और अच्छा करते हैं ना। अगर आप उसे मैथ वीक है उसका, सपोज माई चाइल्ड इज वीक इन मैथ एंड आई अप्रिशिएट हिम ऑन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स, सो आप देखोगे उसकी इंप्रूवमेंट आने लग जाती है सब्जेक्ट्स में भी। अगर आप उसे ना डांटो कम मार्क्स आने पर भी, उसे अप्रिशिएट करो, तो वो उसके मार्क्स इंप्रूव होने लग जाते हैं। तो दैट इज योर रिवॉर्ड थिंग। क्लियर? नाउ द सेकेंड स्टेज इज योर कन्वेंशनल स्टेज, in which your external force is the same when the behavior of the person is depend on the external force, how the environment and the person or the social attraction is going on, but its internal motivation is there. Now he is internally satisfied that I know this is wrong or this is right. Now he is having an idea somewhere what is right and what is wrong, because he has already passes these two stages. Now write down your second stage, that is your conventional stage. Should I rub this? सेकेंड स्टेज कौन सी है हमारी? कन्वेंशनल स्टेज, right? And in which we are having interpersonal accord. That means now the person is beginning to think interpersonally, self interest आ जाता है उसका। तो आपकी फर्स्ट स्टेज इसमें कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट नहीं, हमारी थर्ड स्टेज होगी ना इसमें। फर्स्ट टू तो हमने उसमें कर ली, प्री कन्वेंशनल। ओके, आई एम डिक्टेटिंग यू। थर्ड यू कंफर्मिटी, एज रेंज में भी लिखेंगे, पहले लेवल पे लिखो। पहले तो स्टेजेस लिखोगे ना, उसके बाद ही तो एज रेंज पे आओगे। कंफर्मिटी slash interpersonal accord, when you are having your confirmation within yourself that what is right and what is wrong, that is your conformity. Interpersonal accord, ACCORD, accord. Interpersonal accord according to interpersonal introspection basically. स्टेज पे लिखिए, एज रेंज पे, स्कूल एज, when you give the title of the good girl, good boy, bad girl, bad boy, आप बोलते हो ना, you are a good girl, you should not do this, you are a good boy, you should not do this, he is very notorious. When you give the tags to the child, that my child is very shy, my child is very brilliant, you give the titles to the child ना, that is your school age, schooling age. अब इसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिखो, प्री स्कूल सेल्फ इंटरेस्ट में आ गया। प्री स्कूल इज किंडरगार्टन, स्कूल एज में इज इट इज मीडियोकर एज होती है 6 to 8 बेसिकली, 6 to 10th 8th तक जो होती है हमारी इंटरमीडिएट क्लासेस। Okay, that is your school age in the conformity interpersonal accord. Have you seen the 6th or 7th class students? They were so curious about the good girl, good boy title in the class. They want to have it, and they do, and they put efforts. I have seen the students who put efforts for getting these titles, for getting the class monitorship, for getting the good rewards in the class, for getting that star badge at the end of the month, that good boy or good girl. We do na star badge, and we also make the blackboard for the blacklisted students or the indisciplined students. For वो कहते हैं कि मेरा नाम इधर ना है ब्लैक लिस्ट में, तो वो नहीं करता शरारते। मॉनिटर को भी क्या बोलेगा, चल एक स्टार लगा दिया ना, तो नाम में चुप बैठोगे तो हटा दियो। तो व्हाट इज दिस? दिस इज योर रिवॉर्ड एंड एनफोर्समेंट चल रही है यहाँ पे, है ना। नाउ ही वांट्स टू हैव दैट गुड बॉय टाइटल और द गुड गर्ल टाइटल। अब इसके डिस्क्रिप्शन में लिखो कॉमा डाल के, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, इन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स में कर लेना। Effort is made to secure approval
and maintain friendly relations, secure approval, and maintain family relations, friendly relations, friendly relations with each other. Approval and maintain the friendly relations with each other. That means now he wants to have approval that I am a good girl or I am a bad boy. Approval चाहिए उसको. Friendly relations कैसे होंगे? When you will have a positive aura around yourself, when you will be positive. नेगेटिव लोगों के पास तो फ्रेंड रिलेशंस नहीं बनाता है ना कोई, पॉजिटिव लोगों के साथ बनाता है. एक वो गैंग वाला समझाया था कुछ प्याजे की थ्योरी में, दैट गैंग कॉन्सेप्ट, दैट आई एम हैविंग माय बेस्ट फ्रेंड, आई एम हैविंग माय गैंग, माय फ्रेंड्स एंड आई एम द लीडर ऑफ दैट गैंग. जब लीडरशिप क्वालिटीज उसमें आने लग जाती है, ये मेरा है, ये मेरी गैंग है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो चीज जब आने लग जाती है तो वो एफर्ट्स पुट करते हैं किस चीज के लिए? अच्छे के लिए, गुड बॉय गुड गर्ल के लिए. कोई बैड नहीं बनना चाहता, क्योंकि सबको पता है कि बैड थोड़ा नेगेटिव हो जाता है हमारी सोसाइटी में. ठीक है, फिर इसकी फोर्थ लिखो, अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर. कन्वेंशनल की 2 स्टेजेस होगी ना, प्री कन्वेंशनल की 2 थी, अब इसकी 2 है. तो इसमें लिखो अथॉरिटी एंड सोशल चेंज. ये हो जाता है व्हेन वी कम्स इनटू द टीन एज, बेसिकली स्कूल एज ही है, ये भी स्कूल एज में ही होते हैं 11 12 17 18. when you got to know that we are having a fixed rule for our society, and if we are not getting fit into it, we would be maladjusted towards our society. That means we are not fit for the society. There are fixed rules in our society. You cannot you cannot do the crimes in our society. तो ये फिक्स रूल है ना सोसाइटी का, सबके लिए एक जैसा है. ऐसा तो नहीं कि एज वाइज डिफरेंशिएशन है इसमें. तो अगर आप इस चीज में फिट नहीं आ रहे हो तो व्हाट यू आर डूइंग माल एडजस्टिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स योर सोसाइटी. दैट मींस यू आर नॉट एडजस्टेबल टू योर सोसाइटी, यू आर नॉट फिट फॉर आवर सोसाइटी. क्लियर? तो इसमें लिखो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स फिक्स्ड रूल्स. ओरिएंटेशन मींस दैट यू आर हैविंग योर फिक्स्ड फीलिंग्स towards your society, that you know what is right and what is wrong in your society. Yeah, orientation towards the fixed rule. The purpose of morality is to maintain the social order. Now the purpose of the morality is what? Social society के बारे में सोचता है बच्चा. Now he is able to think about the society. Now he is able to do the interpersonal relationship with the society. Write down this line. Social order in the society. That our society should be calm, peaceful. There should be the maintenance of the social purpose for our society. Interpersonal accord. हाँ, continuation में लिखो. Interpersonal accord is expanded. Interpersonal accord is to expand the entire society. We are not working on the one section of the society. What we are doing? We are working on the entire society. We are not working for the one community or the one section of our society interest. Whatever we are thinking that is right or wrong, we are thinking about the whole section of our society. Clear to you? Accord to expanding the entire society, to include the entire society. इतना समझ में आया? नाउ द पोस्ट कन्वेंशनल, आराम से तार रहे हैं. पोस्ट कन्वेंशनल लिखो. थर्ड स्टेज इज योर पोस्ट कन्वेंशनल. व्हाट इज पोस्ट कन्वेंशनल? व्हाट इज पोस्ट कन्वेंशनल? करेक्ट.
स्कूल एज के। In this write down your social contract. नहीं, level and stage पे लिखो social contract. And in your exam also do this table, explain this table, explain all the three stages, that is pre-conventional, conventional, post-conventional, and under that you will arrange these things. You will get full marks. And at the end of the page you have to do the education implication. तो ये किसकी थ्योरी करवा रही हूँ मैं? कोलबर्ग थ्योरी। कोलबर्ग थे एक हमारे थ्योरी जिन्होंने दी है, न्यूयॉर्क हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाते थे, और उन्होंने ये सोशल इंटरेक्शन की थ्योरी दी है बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके, और उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो चाइल्ड की करवाई है वो करनी है। ही इज बायोलॉजी साइकोलॉजिस्ट, so he has given many theories in his field, but we don't have to go into the depth because we are preparing for B.Ed, not for higher studies. We are not doing any theoretical work in this. So just इसमें लिखा social contract post convention में. Now your age would be teens. Now your child is of teenage. He is that is 17, 18. Now उसमें स्कूल एज है आपकी 11, 12 वाली जो आ जाती है। 15, 16, 17, 18 इसमें आ जाता है 18, 19 वाली जो एज होती है ना, that is. Now the child has begun to think about the mutual benefits. Now he will think about his benefit also and for the societal benefit also. If I am doing anything, I am getting any benefit, I will do it. उसकी मन में आइडेंटिटी आ जाती है। Now what I am, why I am, and how I will do the right thing for the society. Is it giving me any benefit or is it not? These questions arises in the mind of the child. So he begins to think that should I do this or should I not? I am doing this for the benefit of the society, but I am not getting any mutual benefit. Legally तो है ये, ठीक है ये, लेकिन क्या मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं? जब वो इस स्टेज पे आ जाता है तो वो हो जाती है हमारी टीनेज, जब उसे सेल्फ आइडेंटिटी आ जाती है, मैं चीज आ जाती है, ईगो आ जाती है कि व्हाई ही इज अप्रिशिएटिंग हिम, व्हाई नॉट मी, ये चीज आ जाती है। तो वो अब सोसाइटी के बारे में तो सोचने लग जाता है कि ये सही है या गलत है, लेकिन सोसाइटी से पहले वो खुद को रखता है। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट उसमें लिखो डिस्क्रिप्शन में, म्यूचुअल बेनिफिट morally right mutual benefit comma morally right and legally right are not always same. अब उसके लिए डिफरेंशिएशन है कि क्या ये लीगली तो सही है, क्या ये मॉरली सही है कि नहीं है। जब हमारे थॉट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलते तब हम अमेंडमेंट्स करवाते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आई विल रिपीट, पहले समझ लो लिखने का, आई विल रिपीट वॉट एवर द लेफ्ट। हमारे कॉन्ट्राडिक्शन जब होने लग जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारी जो लीगल राइट्स है उनसे, और जो हमारे अंदर मॉरली राइट्स है उनसे। कॉन्स्टिट्यूशन अभी देख रहे हो आप सीएए का बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल चल रहा है वो, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट्स, लीगल थॉट्स हमारी जो जनता के लिए मॉरली थॉट्स है उनसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। People are not getting the right direction or the constitution is not doing the right thing according to them. तो ये जब चीजें कॉन्फ्लिक्ट कर जाती हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, when there is a contradiction between the socially correct things and the morally correct things. तो ये एक समझ में आ गया। ये टीनेज में होता है जब बच्चे के अंदर जब काफी क्यूरियोसिटी हो जाती है चीजों को ज्यादा जानने की, जब वो चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होने लग जाता है कि ये लीगली तो सही है। अब लीगली तो ये भी सही, जब हम कोर्ट में झूठी गवाहियां देते हैं वो भी लीगली तो सही है। इफ यू वांट टू विन द केस यू हैव टू डू दिस, बट क्या ये मॉरली सही है? जब वो इस चीज के पीछे डिफरेंशिएशन करने लग जाता है ना तो वो इस स्टेज पे पहुंच जाता है, टीनेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट लिखा कॉमा मॉरली राइट एंड लीगली राइट आर नॉट ऑलवेज सेम, हमेशा सेम नहीं होता। So there is a big difference between the legally right things and the morally right things. Understood? Now write down the last stage, that is universal principles. 6th
सिक्स होगी ना, हाँ पोस्ट कन्वेंशन में लास्ट स्टेज होगी सिक्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, एडल्टहुड, एज रेंज में लिखोगे एडल्टहुड, डिस्क्रिप्शन में लिखो मोरालिटी इज बेस्ड ऑन mutual benefit of all, on which the morality is based, when we think about the benefit of the all, we are not getting selfish here, we are in the ego stage, ego when we think about the society। अब उसके अंदर जो म्यूचुअल बेनिफिट था ना कि मेरे लिए सही है कि नहीं है, लीगली तो है ये सही, मेरे लिए सही है कि नहीं है, मॉरली सही है कि नहीं है, अब वो चीज खत्म हो गई है। अब now we begin to think about our society, if it is not correct for me, it is giving benefit for my society, I will do this। हम उस स्टेज से आगे आ जाते हैं, दैट इज योर एडल्टहुड। नाउ यू ऑल आर एडल्ट, यू थिंक अबाउट द सोसाइटी फर्स्ट और यू थिंक अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट। आप पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो या अपने बारे में सोचते हो? पहले फैमिली के बारे में, सोसाइटी के बारे में पहले सोचते हो कि अपने बारे में पहले सोचते हो? अपने बारे में। हम तो इसका मतलब कि हम अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हम अब जो सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाते हैं। इट इज, आप बिगर पिक्चर पे देखो, जो एनजीओ में आप काम करते हो, एनजीओ में जो काम करते हैं ओल्ड एज में नहीं होते हो। आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर एन एनजीओ एंड आई एम नॉट इन द ओल्ड एज। जैसे अगर हम अपने घर में दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, तो जब हमारी फुल एज हो जाएगी तभी हम दूसरे के बारे में, अभी तो फिलहाल अपने बारे में सोचेंगे और हम अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे। It's not about maintaining or something, it is about right or wrong. If you are getting the mutual benefit for yourself as well as for the society, that means you are not that much adult now। अभी आपका वो लेवल, मेच्योरिटी लेवल नहीं हुआ है। जब हम सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाते हैं, वी बिगिन इन द एडल्टहुड, जब हमारे लिए हमारी सोसाइटी पहले होती है, हमारी कंट्री पहले आती है, रेदर देन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, कि हम अपने बारे में नहीं सोचते। अब बिगर पिक्चर पे लेके चलो, इसे छोटी पिक्चर पे मत देखो। आई गॉट योर पॉइंट, यू आर राइट एट योर पॉइंट, बट अब बिगर पिक्चर पे लेके देखो। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, अगर हम क्राइम केसेस के बारे में बात करें, तो हम पहले सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। आप भी अपनी सोसाइटी के बारे में सोचोगे इसमें पहले, है ना। हम स्मॉल पिक्चर के बारे में अभी नहीं बात कर रहे, वो फिर आपके वो टीन एज उसमें आ जाता है, ठीक है। अगर हम बिगर पिक्चर के बारे में बात करें, जो हमारी सोसाइटी के क्रिटिकल इश्यूज हैं, हम उससे पहले सोसाइटी को रखते चलते हैं ना, कि हमारी सोसाइटी के लिए मॉरली ठीक है कि नहीं है, सही है कि नहीं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचते हैं ना, देखो एक तो ना इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, उसे अमेंडमेंट्स की बहुत ज्यादा तरीके हैं, ठीक है। तो वो ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट खाता ही खाता है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लूप होल्स भी है कहीं ना कहीं, ये तो सब मानते हैं। एक तो अमेंडमेंट वाला जो है कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो, जब अभी सीए भी हुआ फिर सीए हो गया वो, बट पीपल आर नॉट अवेयर व्हाट इज इट एक्चुअली। वी ऑल नो व्हाट इज मीडिया इज टेलिंग अस। किसी ने पढ़े वो पन्ने निकाल के मीडिया से, पूरे मैक्सिमम पढ़ा है, मीडिया से ही पढ़ा होगा, इंटरनेट। ओके ओके, तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से एक को एड्रेस किया जा रहा है। जो लोग हमारे अदर कंट्री में हैं, जिन कंट्री का नाम है, उसमें जो लोग नहीं है, मतलब वहाँ पे पटाना किया गया है, बट अंदर से देखा जाए तो पूरी प्रोसेस पटाना भी नहीं है। कुछ लोग इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वही मैं कह रही हूँ, जो हमारा कभी कभार लीगली हम चीजों से कॉन्ट्रडिक्ट खा जाते हैं, कि हमें नहीं लगता कि ये लीगली जो किया है गवर्नमेंट ने, क्या वो सही है या वो गलत है, समझ रहे हो चीजों को। तो जब हम इस स्टेज से ऊपर आ जाए, बैक टू योर कॉन्सेप्ट, या कॉन्सेप्ट है जब हम सोसाइटी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या ये जो मैं कर रहा हूँ वो सोसाइटी के लिए सही है या गलत है। क्योंकि अगर एक बंदा गलत करते तो उसको देख के 10 और गलत करते हैं, या सही भी, दोनों तरीके से लेके चलोगे, तो उस स्टेज को हम कहते हैं हमारी एडल्टहुड। अब इस पर ही लिखो, एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। जाते ही नहीं है, इट्स वेरी रेयर टू सी पीपल यस, गोइंग टू द स्टेज 5 and 6।
ये बहुत, हाँ ये हम बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि कोई भी नहीं जा पाता, तो उन लोगों के लिए तो हम लिखेंगे ना जो जा पाते हैं। तो रेयर लोगों के लिए भी तो हम लिखेंगे अपनी स्टेज, तो है ना वो। देखो वो ना ये वही वाली बात है कि हम इसमें ना साइकोलॉजी में हम कुछ भी फिक्स नहीं है कि इसी स्टेज पर है। एज हम जनरलाइज वे में बात करते हैं, जब भी हम कोई भी चीज बात कर रहे हैं हम जनरलाइज वे में बात कर रहे हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, समझ रहे हो? एक्सेप्शंस हमेशा आपको मिलेंगे, वो आपको एडल्टहुड में भी मिलेंगे, टीन एज में भी मिलेंगे, स्कूल एज में भी मिलेंगे। लेकिन हम जब अपनी थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं इन आवर एग्जाम, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर थ्योरी इन अ जनरलाइज्ड वे, वी आर नॉट गिविंग द एक्सेप्शनल केसेस ओवर देयर। कोई बात नहीं, आपको जैसा मैंने करवाया है ना आप वैसा करो, छोड़ दो बुक को, जैसा मैंने करवाया है ना आप वैसा लिखोगे पेपर में, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। Yes, you can mention your age because different theories having a different representation in different books, and you cannot claim कि इसमें नहीं है या इसमें है, and we cannot claim कि यही ages हैं, क्योंकि exceptional cases are always there। और जरूरी नहीं, अब उसने पता नहीं कौन सी ईयर में ये थ्योरी लिखी, क्या कंट्रोवर्शियल इसकी और भी होंगे, हर थ्योरी के कंट्रोवर्शियल पार्ट भी होता है, तो वो चीजें भी होती है। अब इसने देखो, इसने प्याजी की तरह साइकोलॉजी पे नहीं बेस्ड है ये इट इज थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी, मॉरली बेस्ड है ये, इट इज सोशली बेस्ड है ये, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसने बहुत सारे फैक्टर्स नहीं लिए, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे फैक्टर्स नहीं है इसमें, तो ये कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो डोंट गो इनटू द डेप्थ। एजुकेशन इम्प्लीकेशन लिखो। नॉलेज के ऊपर काफी एम्फसाइज किया है। तो अभी क्या है कि अभी हम वो बच्चे बोलते हैं कि आप ये क्यों डाल रहे हो, जैसे हम लोग पहले ऐसे पानी गिरा देते थे, डस्टबिन में नहीं डालते थे, तभी ये सब कुछ आया। तो अब बच्चे ज्यादा मोरली हो गए कि हमें ये सब नहीं करना है। कैसे हुए? हाँ, हमसे तो है, उस बच्चे को किसी ने मोल्ड आउट किया, उसकी मम्मा ने सिखाया, उसकी टीचर ने सिखाया, स्कूल में रिलीज हुई तो उसने वो चीज वहां से सीखी, फिर वो आपको बता दे कि नहीं मम्मा ऐसे नहीं ऐसे होगा। कैसे? स्कूलिंग से ना, क्योंकि मैक्सिमम 6 to 7 hours you are dedicating to your school and that is how your child is perceiving the things। वहीं से तो सीख रहे हैं ना, टीचर ही तो सिखाती है उसको। जब स्कूल में रिलीज होते हैं क्लीन डेली, क्लीन सिटी, तो he got the meaning, okay this is the meaning of clean, that we should not throw garbage here and there, we should throw this in the dustbin। वही चीज वो आके घर में सिखाता है, तो कहीं ना कहीं से तो सोशली सीखता है ना, वो मोल्ड आउट होता है ना चाइल्ड। देखो बच्चों को मोल्ड आउट करने वाले दो लोग होते हैं, पेरेंट्स एंड टीचर्स, बिकॉज द मैक्सिमम टाइम चिल्ड्रन इज डेडिकेटिंग टू द पेरेंट, 6 to 7 hours एट दी होम, 6 to 7 hours इन दी स्कूल। 6 घंटे सोता है और 2-3 घंटे पढ़ता भी होगा, वो भी टीचर से, ट्यूशन, मदर, वॉट एवर हु इज टीचिंग, whosoever is teaching, and 1 से 2 घंटे वो खेलने में लगाता है जिससे उसका पीर प्रेशर आ जाता है। तो मैक्सिमम आवर्स तो वो पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ ही जा रहा है। अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो मैक्सिमम आवर्स वो कहाँ स्पेंड कर रहा है? टीचर्स एंड पेरेंट्स। सो वो चीजें कहाँ से सीख रहा है? फैमिली एंड स्कूलिंग, नेबरहुड में भी वो जो देख रहा है, वो हो सकता है वो आके आपसे क्वेश्चन करता हो। जब वो वहां से सीख भी रहा है तो वो कितना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन बाकी के 14 आवर्स तो वो आप लोगों के साथ है ना। तो उसको मोल्ड आउट करना हमारे हाथ में होता है, उसके अंदर मोरल वैल्यूज पुट करना हमारे हाथ में है। अब बीइंग अ फीमेल, वी आर मदर्स आल्सो, वी आर टीचर्स आल्सो, एंड वी आर टीचिंग देम आल्सो, एंड वी आर गिविंग मॉरल डेवलपमेंट आल्सो। तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों तरफ से होती है, पेरेंट्स से भी और टीचर्स से भी। ठीक है, अब इसकी लिखो एजुकेशन इम्प्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट, आई एम जस्ट गिविंग यू द पॉइंट्स, यू विल एक्सप्लेन इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, पर्सनल एग्जांपल ऑफ टीचर, हाउ वी इंक्लूड एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, हेडिंग डालो, उसमें लिखो पहला पॉइंट है पर्सनल एग्जांपल ऑफ द टीचर। हाँ, मॉरल डेवलपमेंट में हेडिंग डालो एजुकेशन इम्प्लीकेशन
You will elaborate by yourself only. अभी explain करूँगी ना साथ साथ, तो you will get to know the points of moral development. Heading डाली? अब इसे पहला पॉइंट लिखो, पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ टीचर. टीचर्स आर योर एग्जाम्पल, यू फॉलो योर टीचर्स. आप मॉरली टीचर को फॉलो करते हैं. दैट इज वाई टू बिकम अ टीचर इज अ वेरी वेरी कैसे बोलूं, मतलब बहुत ही ज्यादा डेलिकेट सी जॉब होती है. बिकॉज यू आर नॉट ओनली अ टीचर, यू आर अ रोल मॉडल फॉर योर स्टूडेंट. स्टूडेंट्स विल इमिटेट यू, स्टूडेंट विल लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, हाउ यू आर डूइंग. अगर आप सपोज आप टीचर हो, ठीक है, आप सोशल गैदरिंग में गए एंड यू आर डूइंग सच स्टफ विच यू डोंट वांट योर स्टूडेंट्स टू फॉलो, तो आपको खुद के अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करनी, गलत है. मैं टीचर हूं, मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगी मैं अगर खुद ही ये सब करूंगी. तो मॉरली करेक्टनेस वहीं से आ जाती है. एक सेल्फ गिल्ट आ जाता है कि हम कर रहे हूँ सही है या गलत है. बोलते नहीं तुम तो खुद ही टीचर हो, तुम के बच्चों को क्या पढ़ाओगे जो तुम्हारे अंदर खुद ही पेशेंस लेवल नहीं है. बोलते हैं ना ऐसे, स्कूल में भी बोला जाता है जब तुम बच्चों पे चीखम चिल्ली कर दे तो कोई टीचर आके देख ले तो वो सीधा यही बोलते तुम क्या टीचर बनोगे, तुम तो बच्चों पे ऐसे चीख रहे हो, तुम्हारे अंदर पेशेंस लेवल नहीं, तुम बच्चों के अंदर क्या पेशेंस लेके आओगे. तो यू आर नाउ रोल मॉडल. और रोल मॉडल इज अ बिग वर्ड. यू आर क्रिएटिंग एग्जाम्पल फॉर योर स्टूडेंट, यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर ऑफ योर नेशन. सो यू शुड बी अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर देम. क्लियर? इसको लिख लोगे अपने वर्ड्स में. सेकेंड पॉइंट लिखो, प्रेजेंटिंग मॉरल आइडल्स, सॉरी, प्रेजेंटिंग मॉरल आइडल्स. Ideals, IDEALS. That means the development of habits, the development of attitude of the student. Like honesty is the best policy. You should not say lie. You should always speak the truth. ये सब हम सिखाते हैं ना बच्चों को. तो ये सब क्यों सिखाते हैं हम बच्चों को? ताकि वो अपने अंदर ला सके, इम्प्लीमेंट कर सके वो, और ये सोसाइटी के लिए भी सही रहेगा और हमारे लिए भी सही रहेगा. We always want our students to be a good human first, then we want them to become occupation wise, जैसे doctor, teacher, whatever they want to become. Then third लिखो, examples of great heroes. We always represent the examples of great heroes in our class. राजा राममोहन रॉय, मैथमेटिशियन जो थे, उनका एग्जाम्पल देते हैं. गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस. और वो हम क्यों देते हैं इनके एग्जाम्पल्स? so that they should know that what kind of a leaders we are having, what kind of a great heroes we are having. and कई बार आते हैं ना कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, जो वो अपने देश के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो why not me. और अब तो हमारे पास ज्यादा टेक्नोलॉजी, जो उस टाइम पे तो इतना टेक्नोलॉजी, इतना कुछ एडवांसमेंट भी नहीं थी, तो why not us. टेक्नोलॉजी वाइज वैसे हम क्यों नहीं अपनी नेशन को कुछ रिसोर्सेज दे सकते हैं. आता है ना दिमाग में, हम लोगों के भी आता है, लेकिन हम लोग क्या होता है कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है इस स्टेज तक. लेकिन जो बच्चा 12th पास आउट है वो डिफेंस में जा सकता है, वो अपने आप को इतना इंप्रूव, इतना डेवलप कर सकता है कि वो नेशनल रिसोर्सेज के लिए काम करे. उसके पास चॉइसेस ऑफ फील्ड्स है. हमारे पास इस टाइम पे चॉइसेस ऑफ फील्ड्स नहीं होती है क्योंकि हम इस स्टेज पर हो गए. नाउ वी आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फैमिली, एनवायरमेंट, सोशली रिस्पॉन्सिबल. उस टाइम उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है टीनेज में, तो वो ये सारी चीजें सोच सकता है कि व्हाट फील्ड आई हैव टू चूज, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्स आई कैन डेडिकेट टू माय कंट्री, व्हाट काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन आई कैन गिव टू माय कंट्री. गॉट माय पॉइंट? देन फोर्थ इज बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन. फोर्थ पॉइंट लिखो, बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट मैन. रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब की बायोग्राफीज पढ़ते हो आप. उससे हम एग्जाम्पल्स देते हैं ग्रेट हीरोज के, इसमें हम बायोग्राफीज पढ़ा रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया. एपीजे अब्दुल कलाम, पिक्चर बनती है MS धोनी, सरोजिनी नायडू, इन सब के बारे में हम क्यों ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में, आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे कंट्री में थे, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है न्यूक्लियर एनर्जीज में और इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया अपना. कैसे पता है? कुछ पढ़ा होगा कहीं पर बायोग्राफी.
इसमें आप लिखोगे एजुकेशन इम्प्लीकेशन में द टीचर शुड encourage the children by giving the biographies of the real men, by telling the stories of the real men in our society, whatever they have contributed. और इसमें आप एग्जाम्पल डाल दोगे, कोई भी आपने कोई किसी की तो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी, सब पढ़ते हैं अपनी लाइफ में एक बार, तो किसी की भी आप डाल सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। नहीं, पूरी बायोग्राफी नहीं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर, he has contributed in our nation, फलाना फलाना, and you can give the little bit of his examples in it. ठीक है, ग्रेट हीरोज में सिर्फ नाम डालोगे ना, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, गांधी जी, सिर्फ नाम डाल दिया आपने, they have contributed and by giving their examples we can enhance and encourage the motivation of our children also to dedicate to our country resources and whatever your thoughts, it is your, how you are perceiving the things, it is your thought process कि आप एजुकेशन में आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो, मॉरल डेवलपमेंट, यही हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाओगे फिफ्थ में लिखो सेलिब्रेशंस ऑफ डेज, while we celebrate every day in our school, environmental day, sports day, we are celebrating our Gandhi Jayanti also. Environment supply करने के लिए बच्चों को कि एक environment उन्हें मिले, they should aware that what kind of a heroes, what kind of a days we are having in our country. Independence Day celebrate करते हैं हम, Republic Day celebrate करते हैं, क्यों करते हैं हम? तो इम्पोर्टेंस उन्हें मीडिया के थ्रू भी पता चल जाएगी, हम उन्हीं को इन्वॉल्व करते हैं। किसके लिए? अवेयरनेस के लिए है। जब बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है ना, तब उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, rather than by seeing और by hearing। अगर आप किसी चीज को खुद काम करते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से आता है ना वो काम, rather than by seeing it। वही चीज यहाँ पर है। फिर 6 पॉइंट लिखो अदर कोकरिकुलर एक्टिविटीज। अब इसमें अदर कोकरिकुलर एक्टिविटीज आपकी आ जाती है, व्हेन यू फाइनलाइज द स्टूडेंट बाय गिविंग देम द करेक्टर, क्या आज तुम सरोजिनी नायडू बनोगी, आज तुम महात्मा गांधी बन रहे हो, प्ले 1 एक्ट प्ले होते हैं हमारे, प्लेज, डिबेट, कॉम्पिटिशंस आर देयर, क्विज कॉम्पिटिशंस आर देयर, दे हैव टू गो थ्रू इट, ऑल दिस आर एजुकेशन इम्प्लीकेशन। एंड इसमें अगर आपको कोई और पॉइंट लगता है तो यू कैन ऐड इट कि how can you teach the moral development to the student, this is your education implication, how you can implement your moral development into your education basically। now जहां आएंगे वहां लिखा देंगे, ठीक है। now we are having the Erikson theory, next theory लिखो एरिक्सन। पहले फटाफट इस थ्योरी को पढ़ो 2 मिनट और पूछो कुछ पूछना है तो। कोहलबर्ग जो मैंने लिखवाई है पहले उसको गो थ्रू हो 2 मिनट, देन गिव मी द फीडबैक, वॉट एवर लेफ्ट आई विल एक्सप्लेन यू। डेवलपमेंट है, मतलब शारीरिक मतलब विकास है, मानसिक विकास है, सामाजिक विकास तथा नैतिक विकास, तो चारों पॉइंट में तो सब कुछ लिखना होगा, उसका तो चैप्टर का सारे आ जाएंगे। सब कुछ क्या लिखोगे, जो समझ में आएगा वही तो लिख के आओगे पेपर पे। मतलब किस थ्योरी में बोल रहे हो आप? कोहलबर्ग में उसी की थ्योरी में 4 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट तो है उसमें स्टेजेस 4, हाँ 4 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में भी स्टेजेस है ना, तो वी विल राइट डाउन द स्टेजेस अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। जो भी स्टेजेस तुम पूछोगी ना वही लिखनी है उसके अंदर। Adulthood is your 20 plus, 20-25 plus, 18 plus is your teenage में आ जाता है वो। हाँ 21-22 when you are mature enough to take your decisions universally, and don't mention the numbers in these stages। जैसे लिखा है ना स्कूल एज, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडल्टहुड, वैसे ही लिख के आना पेपर में।
नंबर्स मत लिखना एज वाइज, मत लिखो, वो मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, वहां तुम फंस जाओगे। नंबर्स मत लिखो। अथॉरिटी इन सोशल स्कूल एज में 11-12 की जो एज होती है ना हमारी, 16, 17, 18, वो 6 to 8, 6 to 10 वाली है, उसमें भी स्कूल एज है, इसमें भी स्कूल एज है, स्कूल एज के अंदर ही ये डेवलपमेंट हो रही है। मैक्सिमम 3 to 4 लाइन्स, दैट एक एक पॉइंट में, लेकिन 6 पॉइंट्स है ना, तो एटलीस्ट तुम्हारा एक पेज 1.5 पेज कवर हो जाना चाहिए। 2 years एंड अबव होते हैं ना, इन्फेंसी जो 2 years एंड अबव हेयर, ठीक है। एंड उसमें बच्चा क्या, आप बच्चे को लालच देके तो उससे करवाते हो ना, रोटी खा लो बेटा, देखो हम फिर घूमी जाएंगे, रिवॉर्ड देते हो ना उसको। जो 2 साल का बच्चा होता है वो क्यों काम करता है, आप उसे चॉकलेट दोगे तो वो आपका काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, तो रिवॉर्ड्स के लिए काम कर रहा है वो। ओके, बाय मूविंग फॉरवर्ड वी विल मूव टुवर्ड्स आवर इरेक्शन थ्योरी ऑफ 16 मार्क्स के। ये दोनों आज जो मैं कवर करवा रही हूँ थ्योरीज आपकी, अब हाँ, if you go through your introduction, you will firstly give your introduction of the Kohlberg, then you will write down the 3 stages: pre-conventional, conventional, conventional with examples. Your 4 page would be covered in this, ठीक है। गो थ्रू हो जाओ, डाल सकते हो, डालने दो। I am just giving you the brief. In details, you have to. I have explained you the theory. What is the theory basically? What was his idea? Now, in books, you will get many things for this. इतना लिख ही नहीं पाओगे पेपर में, एक ही थ्योरी थोड़ी ना करनी है। एजम्पशन सीन कर लो, ठीक है, वो तुम्हारे प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल में जो आएंगे उसी में एस्पेक्ट डाल देना अपने, ठीक है। उसके बाद ये टेबल बनाना, तुम्हारे 5-6 पेज इसमें कवर हो जाने चाहिए। उसके बाद तुम इसे एक्सप्लेन करोगे, इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन डालोगे, 8 पेज तो होएंगे तुम्हारे, ज्यादा ही जाएगा ये। मैम एक बार ये रिव्यू करें कि लाइक सबसे पहले प्री कन्वेंशनल स्टेज में था इन्फेंट्री है, और उसके 2 स्टेजेस है, पनिशमेंट एंड सेल्फ इंटरेस्ट। हाँ, फिर एक कन्वेंशनल स्टेज, उसमें स्टेजेस इंटरपर्सनल रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देन लास्ट में है पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड universal principles. Your conventional stage is basically your school age. उसको हमने 2 में डिवाइड किया है, ठीक है। प्री स्कूल को हमने 2 में डिवाइड किया है। जब वो स्कूल से निकल जाता है तो उसकी जो एडल्टहुड आ जाती है, टीनेज और एडल्टहुड, उसको हमने 2 में डिवाइड किया है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? जब बच्चा छोटा है, जब बच्चा स्कूल में गया, उसके बाद जब स्कूल से वो निकल गया, जो भी ये बदलाव आए हैं वो 6 स्टेजेस में इन्होंने मॉरली डेवलपमेंट आपको दी है। क्लियर टू यू? आप पूछो। सीधा टेबल को ही आप एक्सप्लेन करोगे बस, सीधे एजुकेशन इम्प्लीकेशन। अब टेबल को आपको कैसे बनाना है, आप एक एक को भी लेके बना सकते हो। जैसे प्री कन्वेंशनल डाला, फिर 2 में डिवाइड किया, उसको एक्सप्लेन किया। कन्वेंशनल डाला, 2 में डिवाइड किया, फिर उसको एक्सप्लेन किया। वैसे भी कर सकते हो, या सीधा एक टेबल बना के एक एक पॉइंट उठा के उससे एक्सप्लेन करते जाओ, वैसे भी कर सकते हो। इट्स ऑन यू हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर पेपर, बट योर पेपर शुड बी क्लियर एंड क्लीन, इट शुड नॉट बी अनटाइडी। Only blue and black, that's it. Black is only for the outlining of the boxes, highlight headings, और you can give मैं तो कोट्स भी डालती थी, साइड में कोट्स डाल के अच्छे से पेपर रिप्रेजेंट करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो फिर मार्क्स ऐसे मिलते हैं जैसे पेपर अटेम्प्ट किया होता है। टीनेज आ जाती है वैसे, क्योंकि एज के नंबर्स लिखने ही नहीं है, सिर्फ स्कूल एज और स्कूल एज, दोनों स्कूल एज है वो। एक आपकी 6 to 10 है, एक 11 to 12 है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में टीन एज है वो।
जब टीनेज से मतलब टीनेज और एडल्टहुड के बीच की जो एज होती है ना, ये वो है। तो आप एज को लेकर कंफ्यूज हो ही मत ना। आप क्यों नंबर्स पे जा रहे हो जब आपकी बुक में मेंशन नहीं है? जब आपको मैं मना कर रही हूँ तो आप क्यों जा रहे हो नंबर्स पे? मत जाओ, ठीक है? बिकॉज यार इधर ना बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। मॉरली किसी को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। मॉरल या देखो कि कभी कभी 2 साल के बच्चे में इतनी समझ होती है कि जितनी टीनेज में भी नहीं आती लोगों में, समझ रहे हो? तो आप एज वाइज इसको ना ही जाओ, जो जो मैंने लिखाई है ना, इन्फेंसी, एडल्टहुड, आप वैसे ही लिखो तो वो ज्यादा बेटर है rather than by going on the numbers, ठीक है? अब इरेक्शन की थ्योरी लिखो फटाफट। इरेक्सन वाज अ साइंटिस्ट, नहीं मैं आपको बता रही हूँ इसको। ये साइकोलॉजिस्ट थे और सोशलिस्ट बिहेवियर पे इन्होंने थ्योरी दी है इरेक्सन ने। ही वाज इन जर्मनी एट दैट टाइम, और उन्होंने जर्मनी में ये अपनी थ्योरीज दी हैं, जिसको हम कहते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरीज। क्लियर? इन विच वी विल डू द कॉग्निटिव develop, how the cognitive development is affecting our social development, basically how psychologically we are affecting our social development is our psychosocial development। फटाफट हेडिंग डालो इरेक्शन साइकोसोशल डेवलपमेंट, और ऐसे ही सेम टेबल बनाओ, स्टेज, एज, फिर साइकोसोशल क्राइसिस। इससे हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था ना, उसे लिखना है साइकोसोशल क्राइसिस। और किसी के पास ठाकुर पब्लिकेशन पढ़ी है? ठाकुर पब्लिकेशन में ना इसका वो दिया हुआ है एक टेबल, ये ग्रुप में फोटो भेज देना, जिसके पास बुक नहीं होगी वो बना लेगा। ये ऐसे ही बना के आना पेपर में, ये टेबल ऐसे ही बना के आओगे, इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करके आओगे। क्लियर? हाँ तो इसी को एक्सप्लेन करेंगे ना। स्टेजेस लिखो, स्टेज 1, थर्ड भी लिखना है साइकोसोशल क्राइसिस। क्राइसिस इज योर बेसिकली डिस्क्रिप्शन ओनली। फर्स्ट स्टेज लिखो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। I will explain you these stages and you will write down by your own, क्योंकि आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, स्पेशली इन ठाकुर, ठीक है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होती है जब 1 ईयर ऑफ द लाइफ बच्चा कंप्लीट करता है अपना, मतलब कि 18 मंथ्स तक से वो मतलब 1 साल छोटी जो स्टेज होती है उसमें आ जाता है ये। नाउ ही इज बिगिन टू ट्रस्ट दैट शी इज माई मॉम, द लेडी हु इज हैंडलिंग मी इज माई मदर and she is giving me nurtured। clear? mistrust, आप जो अपने बच्चे को किसी और की गोदी में देते हो तो क्या वो कंफर्टेबली चला जाता है? नहीं जाता। so that is mistrust। when he knows what is his and what is his, उसका क्या नहीं है और क्या है। समझ में आई चीज? जो उसको किसी में एक ट्रस्ट बनने लग जाता है कि she is my mother, she is my father, अपने घर के लोगों के साथ वो मिलजुल के रहता है, लेकिन जब वो दूसरे के हाथ में जाता है तो वो रोना चालू कर देता है, तो दैट इज मिसट्रस्ट। क्लियर टू यू? सेकेंड स्टेज आ जाती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जब तक बच्चा 1 से 1.5 साल का होता है ना, तब तक ये स्टेज होती है। उसके बाद तो ठीक है, दूसरे के पास भी चला जाता है, इतना हल्ला नहीं करता, इतना मिसट्रस्ट नहीं होते उसको कि सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास, इनसिक्योर नहीं होता वो अपनी चीजों से। इसमें आप क्राइसिस में लिखोगे होप एंड ड्राइव। होप एंड ड्राइव, हाँ फर्स्ट वाले का ही है ये भी। ड्राइव, DRIV। होप एंड ड्राइव होता है, एक तो होती है होप कि मैं अपनी मदर की गोदी में हूं तो मैं सिक्योर हूँ, सेफ हूँ, नोबडी विल हार्म मी। एक होता है ड्राइव, मतलब आपके अंदर कुछ थॉट प्रोसेस होने लग जाते हैं, इनसिक्योरिटी होने लग जाती है, एंजाइटी आने लग जाती है बच्चे में जब वो किसी और के पास जाता है। जब उसे क्रैच में छोड़ के चले जाओ या किसी और अननोन बंदे के पास छोड़ के चले जाओ,
तो उसके अंदर वो इनसिक्योरिटी, जो थॉट्स होते हैं ड्राइव कर रहे होते हैं उसको, दैट इज ड्राइव थॉट प्रोसेस का चल रहा है, ठीक है। फिर सेकेंड लिखो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये होते हैं फर्स्ट 3 ईयर, 1 to 3 years। इसमें आप क्राइसिस में लिखो विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। Now the children is learning by moving away from the mother how I have to react. By moving away from the mother, which toy I have to play, from what kind of a person I have to talk. अगर मैं चल रहा हूँ और मैं गिर गया तो मुझ पे हंस रहा है अगर कोई, तो उसे वो डाउट में आ जाता है कि क्या ये मेरे साथ क्या हो गया, शेम लगती है उसे कि भाई मेरी बेइज्जती सी हो गई है, ऐसे उसे थॉट प्रोसेस आते हैं। ऑटोनॉमी इज व्हेन ही इज इन द सेफ, ही नोज कि हाँ अगर मैंने ये टॉय खेलना है, मैं ऐसे करूंगा तो मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, ये चीजें। अब इस स्टेज पे अगर आपने बच्चे को किसी चीज पे डांट दिया ना तो वो पूरी लाइफ तक वो चीज नहीं करता, और अगर आपने किसी चीज पे अप्रिशिएशन किया तो वो करेगा। ये चीज होती है इस चीज में, इस स्टेज, ये बहुत सेंसिटिव स्टेज होती है बच्चों की। तभी जो प्री स्कूल के टीचर्स होते हैं ना उन्हें मदर टीचर बोला जाता है, क्योंकि इस स्टेज पे जिस तरीके से आप बच्चे को मोल्ड आउट करते हो ना वो वैसे मोल्ड आउट हो जाता है। अगर उसे आप डरा धमका के रखोगे तो सहमा, उसे हमेशा अपने ऊपर डाउट रहेगा कि वॉट एवर आई एम डूइंग इट राइट और रॉन्ग। कुछ बच्चे बहुत अलग से बिहेव करते हैं इस स्टेज पे, क्योंकि उनके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं मे बी कि ये नहीं किया तो ऐसा, ये नहीं किया तो ऐसा, तो वो अपने थॉट्स को, अपनी क्रिएटिविटी को कभी एनहांस ही नहीं कर पाते, कभी बता ही नहीं पाते कि हमारे अंदर ये थॉट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं आपका थर्ड स्टेज, लिखो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 to 6 years में है ये। पर्पस एंड डायरेक्शन इसकी क्राइसिस है। डायरेक्शन, नाउ ही बिगिन टू टेक हिज डिसीजंस। अब उसे पता है कि अब वो अपने डिसीजंस लेने लग जाता है। नाउ ही नो इफ आई एम प्लेइंग एनी गेम, व्हाट काइंड ऑफ अ रोल आई हैव टू प्ले इन दैट गेम, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई हैव टू बी, एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। नाउ ही नो द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। अब उसे पता है कि उसे कौन सी गेम खेलनी है। सपोज गर्ल्स में हम घर घर खेल रहे हैं तो उसे पता है कि उसमें उसको क्या रोल है, उसे क्या रोल करना है और क्या सही है और क्या गलत है। वो अब ये सब चीजें सोचने लग जाता है, और इसमें अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो उसे गिल्ट भी होता है ना बच्चों को गिल्ट अलग से ही नजर आ जाता है कि हाँ ये चेंज, बिहेवियर में चेंज आ जाते हैं उनके। और इनिशिएटिव होते हैं, वो खुद एफर्ट्स लेने लग जाते हैं कि हाँ मुझे ये खेलना है, हाँ मुझे ये खाना है, और वो अपनी चॉइसेस बताने लग जाते हैं। नाउ दे नो देयर डिसीजन मेकिंग पावर कि हाँ मुझे ये कलर पसंद है, ये मुझे पसंद है, ये ना पसंद है। तो ये भी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना उनकी, कि वो अपने डिसीजन बता रहे हैं ये सही है और ये गलत है, या ये करना चाहता हूँ ये नहीं करना चाहता। वो एक ओपिनियन क्रिएट उनका हो जाता है इस स्टेज तक। और इसी स्टेज पे बच्चों को डांट दो एक बारी, वो जिंदगी में तुम्हें कभी अपना ओपिनियन नहीं बताएगा, ठीक है। तो वो होता है गिल्ट, कि बच्चे के अंदर गिल्ट आ जाता है कि यार मैं तो जो भी बोलता हूँ मुझे डांटी पड़ जाती है, तो वो चुप हो जाते हैं बच्चे, शाय हो जाते हैं बच्चे, अपने क्रिएटिविटी को वो जाहिर नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत खराब चीज होती है, क्योंकि इस स्टेज पे तो बच्चों को छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी, अपने साइकोलॉजिकली वो जितना क्रिएटिव सोच सके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर सके, उन्हें करने देना चाहिए। कहते हैं ना 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा मानसिक विकास होता है बच्चों का, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, स्टेज पे उन्हें डांटना नहीं चाहिए। समझाना तो अलग बात होती है, डांटना एक अलग बात होती है, ठीक है। फिर स्टेज 4 लिखो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। सिक्स टू 12 ईयर्स में होती है ये। कंप्लीटनेस एंड मेथड्स, कि बेसिकली आपकी प्यूबर्टी एज होती है। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी।
इसका क्राइसिस है कंप्लीटनेस एंड मेथड. नाउ ये प्यूबर्टी एज होती है बेसिकली बच्चों की, 6 टू प्यूबर्टी एज होती है ना, जिसमें उनकी हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, बॉडी में भी चेंजेस हो रहे होते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस में चेंजेस हो रहे होते हैं. इसमें ना टीचर बहुत ही एक वाइटल रोल प्ले करती है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. इसमें टीचर ही उन्हें बताती है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू. इंडस्ट्री होता है व्हेन द चाइल्ड इज हैप्पी व्हाट एवर ही और शी हैज अचीव्ड, ही नो दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग राइट, or if I have achieved something means here if I am getting any reward, if I am doing any right thing I will get the reward. Now he know what I have achieved. Now it's under the hand of the teacher to tell him that whatever you have achieved is right or wrong. ठीक है, वो जो भी अचीव कर रहे हैं ना उसे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, बस उसके अंदर ये मेंटालिटी आ जाती है. इंडस्ट्री मतलब क्या, मुझे लगता है कि हम तो बड़े हो रहे हैं, हम तो बड़े हो चुके हैं, हम डिसीजन जो लेते हैं वो सही होता है. लेकिन इसमें इंफ्योरिटी किससे आ जाती है, जो जिन बच्चों को हमेशा कहते हैं नहीं तुम तो गलत बोलते हो, तुम तो गलत हो, जिसे बार बार डिस्करेज किया जाता है. तो इस स्टेज पे ना तो डिस्करेज कर सकते हो ना ही आप एनकरेज कर सकते हो. आपको मेंटेन करके बैलेंस आउट करके चलना पड़ता है बच्चों के साथ. और इसे मैक्सिमम टाइम जो है बच्चा जो है वो स्कूल में प्यूबर्टी एज में जो टीचर्स के सामने ज्यादा खुलासापन करते हैं रेदर देन एट होम, क्योंकि उसे पता है कि घर में उसकी ज्यादा नहीं चलेगी, घर में उससे बड़े लोग हैं. लेकिन जब क्लास में सेम एज ग्रुप के साथ बैठते हो तो वो चीजें ज्यादा उभर के आती हैं आपके अंदर से. क्लियर टू यू? नेक्स्ट स्टेज लिखो, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. आज क्लास कितने बजे तक है? ओके. आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन लिखा. इसमें स्टेज डालो एडोलसेंट. हाँ 20-25. इसमें करेक्ट वो क्राइसिस में डालो फिडेलिटी एंड डिवोशन. फिडेलिटी FIDELITY एंड डिवोशन. Now the children is becoming more independent. Now we know that we are adults. We can take our decisions. Whatever we are doing right for us, for ourselves and for our society. But at the same time, we know that we are smaller than others. हम कंफ्यूज हो जाते हैं घर में कि हम बड़े हैं कि हम छोटे हैं, कि हम डिसीजन ले सकते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले सकते. कोई डिसीजन लो तो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम छोटे हो, कोई डिसीजन ना लो तो पेरेंट्स बोलते हैं इतने बड़े हो गए अभी तो कोई डिसीजन नहीं लेते तुम. तो हमें ये रोल कंफ्यूजन वाली जो स्टेज होती है उससे हम कहते हैं हमारी फिफ्थ, जिसमें हम आइडेंटिटी अपनी ढूंढ रहे होते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं. करियर मेकिंग स्टेज होती है ना, करियर इज योर आइडेंटिटी बेसिकली. whatever field you will choose it will become your identity ना. तो इसमें हम अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे होते हैं, आइडेंटिटी बना रहे होते हैं सोसाइटी में, और इसमें हम रोल कंफ्यूजन भी प्ले कर रहे होते हैं अपना. ठीक है. फिर 6th स्टेज लिखो, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. And with early adulthood is the stage isolation. Early adulthood is the stage, and crisis में लिखो love and affiliation. Love and affiliation. Now, in the early adulthood, you begin to give the commitments. You begin to give affection, love, respect to the others, and at the same time, you can be isolated. It depends on your experiences. जो पिछले बताया इंफ्योरिटी, गिल्ट, अगर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा तो वो आइसोलेशन में ही रहेगा, वो कमिटमेंट्स नहीं दे पाएगा. ही विल बी इंफीरियर, ही विल बी अफ्रेड ऑफ लव एंड अफेक्शन, ही विल नॉट गिव द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, he will not be get into the relationships and all that. But if you are having the positive experience, you will give the commitment, you will find love, affection, and by positive environment, you will give the positivity to your society also. Clear? फिर 7th स्टेज पे लिखो क्रिएटिव वर्सेस स्टैग्नेशन.
generativity and creativity is the same thing. When you are generating something and when you are creating something, basically you are enhancing your ideas, you are putting forward your ideas. Creativity versus stagnation, middle adulthood में आता है ये stagnation. इसमें आ जाती है आपकी care and production. Now you begin to settle down within your relationships. Now you know what kind of relationships you are having, what kind of a true friends. जब कहते हैं ना अब मुझे ना मेरे पहले तो बहुत सारे दोस्त थे, अब 5 ही रह गए. Now you know what kind of relationships you are having and how you will deal with them. कि आप उन relationships के साथ deal कैसे करोगे. Now you know what kind of environment you want, stability in your life. Basically जब आप कहते हो ना अब तो यार लाइफ में ना सेटल होना है, स्टेबिलिटी चाहिए, जबकि सेटल हम कभी नहीं होते लाइफ में. वो हमें एंड तक रहता है कि नहीं अभी थोड़ा और. लेकिन जब आ जाती है ना स्टेबिलिटी कि हाँ करियर डन, शादी डन, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डन, अब चाहिए स्टेबिलिटी. अब मैं जाऊं घूमूं फिरूं अपनी स्टेबल लाइफ जीऊं. स्टैग्नेंट. एक होता है क्रिएटिविटी, आप जनरेट करते हो अपने आइडियाज कि चलो भाई आज ये किया हमने वो किया. एक होता है स्टैग्नेशन, रोज सुबह 9 बजे जाते हैं, 9 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं. मोनोटोनियस लाइफ. दोनों में बहुत फर्क है. एक लाइफ जी रहा है और एक लाइफ जी ही रहा है बस, तो दोनों में फर्क है. तो ये समझ में आया डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इसमें. एक आप क्रिएटिविटी जनरेट कर रहे हो अपनी लाइफ को, कि आप रोज सुबह उठते हो 9 बजे और आप खाना पीना करके जो भी आप कर रहे हो, उसमें आप एक एक्टिविटी अपने दिन में ऐसी डालते हो जो क्रिएटिव होती है, जिससे आपको लगता है कि हाँ आज मैंने ना कुछ किया है. जैसे तुम्हारे पास टॉपिक होता है कि आज मैंने ये किया और ये मैं बता सकता हूँ. और एक होता है स्टैग्नेशन की, तुमने आज क्या किया था, कुछ नहीं, ऑफिस गए थे, सेम रूटीन सेम. तो आपका प्रोडक्शन क्या हुआ, आपके थॉट प्रोसेस का प्रोडक्शन क्या हुआ, जीरो. जहाँ पे क्रिएटिव माइंड वर्क कर रहे हैं वहां पे ज्यादा होगा. क्रिएटिव माइंड ज्यादा. अब मैं टीचर का एग्जांपल देती हूँ, आप टीचर बनने वाले सब, आप जाते हो स्कूल में, आपने कुछ लेसन प्रिपेयर नहीं किया हुआ. व्हाट यू विल डू, यू विल बिगिन विद सम गेम. तो दैट इज योर क्रिएटिविटी ना, यू हैव क्रिएटेड योर गेम. ठीक है, क्विज गेम हो गई, डिबेट हो गई, क्लास में डिस्कशन हो गए, कुछ भी, या आपने गेम क्रिएट की. अब आप रोज जा रहे हो अपने लेसन प्रिपेयर करके और वो पढ़ा रहे हो, आप बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, नो टीचिंग एड्स, नथिंग क्रिएटिव. तो आपका फीडबैक भी फिर ऐसे ही नॉर्मल सा जाता है बहुत. समझ रहे हो, जो क्रिएटिव टीचर होगी वो हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आती होगी, प्लस उसका सिलेबस भी जल्दी हो जाता होगा क्योंकि उसको टीचिंग एड्स ही बच्चों को मैक्सिमम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते होंगे. समझ रहे हो, तो उसका फीडबैक भी फिर ऐसा जाता है. तो आजकल क्यों डिफिकल्ट होती जा रही है टीचिंग लाइन, बिकॉज दे वांट क्रीम माइंड, दे वांट क्रिएटिव माइंड, दे डोंट वांट स्टैग्नेंट, दे डोंट वांट मोनोटोनियस स्टडीज, दे वांट क्रिएटिव. टेक्नोलॉजी वाली स्टडीज चाहिए आजकल के बच्चों को. आजकल के बच्चों को किताबों वाली स्टडीज नहीं चाहिए. समझ रहे हो चीजें. लास्ट स्टेज लिखो, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. DESPAIR. Despart is basically when you depart, when you isolate from the society. इसकी एज लिखो ओल्ड एज. क्राइसिस में लिखो विजडम एंड रेनुंसिएशन. RENUNCIATION. 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 जब आप रिकनेक्शन बनाने लग जाते हो स्पिरिचुअली डिवाइन. इसमें ओल्ड एज में बेसिकली ओल्ड एज वाले लोगों को क्या चाहिए होता है, व्हाट दे वांट. आपके घर में है कोई ओल्ड एज? सत्संग चाहिए तो सत्संग में क्यों जाते हैं ओल्ड एज वाले लोग? घर में नहीं मिलती. घर में नहीं हो सकते, हम नहीं गॉड से कनेक्ट. सत्संग करना या सत्संग देखना? ओके, बेसिकली दे वांट लव,
they want respect, they want the secure environment, they want the people to talk, they want the people of the same interest, and if they talk, they want them to listen and give their opinions also. ठीक है, this is your old age, जिसमें हम connectivity करते हैं. And despair is your when you connect with the God, when you spiritually connect with something, that is your despair. अब इसमें दो तरीके के होते हैं लोग. एक होते हैं कि जो अपनी नॉर्मल लाइफ में जीते हैं और गॉड से भी कनेक्टेड रहते हैं कहीं ना कहीं. अगर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू एनी टेम्पल और एनी रिलीजियस प्लेस, इट डजंट मीन दैट आई एम नॉट कनेक्टिंग विद द गॉड. आई एम कनेक्ट इन माई ओन वे. एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन वे. ठीक है. एक होता है जब आप उसने अब आपके लाइफ में सारे अचीवमेंट्स कर लिए हैं, अब आपको लव रिस्पेक्ट ये सब मिल रहा है. नाउ यू वांट टू कनेक्ट विद द गॉड. लाइक पूरा आप उन पे ध्यान देते हो क्योंकि अब आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है. नाउ योर लाइफ इज डन. यू हैव डन वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव. नाउ यू वॉन्ट टू अचीव पीस, पीस ऑफ माइंड. You don't want to take the attention of the society. You don't want to create anything. You have already created your empire and everything is done. You are satisfied from inside, not from outside, from inside. कि मैं 60 साल की होगी इसलिए मुझे सेटिस्फाई नहीं होना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सारे काम कर लिए हैं और मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मेरे बच्चे सेट हैं, मेरी सोसाइटी में मैंने कंट्रीब्यूशन दे रखा है अपना, एवरीथिंग इज डन परफेक्टली. तो वो हो जाता है हमारा ओल्ड एज में. कौन सा स्टेज बताया था मैंने? डिस्पेयर एंड ईगो इंटीग्रिटी वाला, जिसे आपकी ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है. ठीक है. और इसी स्टेज पे अलूफ भी रहते हैं कुछ लोग जिनके साथ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलूफ हो जाते हैं. वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है उन्हें समाज से, या उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं पिछले जिससे उन्हें लव एंड रिस्पेक्ट नहीं वो गेन कर पा रहे हैं. तो वो भी अपने डिवाइन एंड स्पिरिचुअली कनेक्टनेस में अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं. तो दैट इज योर लास्ट स्टेज. अब ये दोनों पढ़ो, कुछ पूछना है तो पूछो. Your first unit is done. Now we will begin with your second unit. Right. हाँ पूछो. इसके बाद आपको फर्स्ट यूनिट का बोला था पढ़ के आने के लिए. डाउट पूछो अपने. सेम फ्रेंड्स चलो है नहीं तो बनाओ ना, फिर बात करो और दे देंगे नोट्स, फोटोज क्लिक कर लो जो भी आएंगे. क्योंकि मैं तो ऐसा कोई नोट्स नहीं बनाती हूँ. आई जस्ट गो थ्रू सम बुक्स एंड आई जस्ट गिव माय लेक्चर. तो ये चीज है. नोट्स हैं लेकिन वो फिर मेरे बेसिस पे होते हैं इसलिए. इस टेबल से क्या होता है, पहले तो आपको खुद को क्लैरिटी हो जाती है कि पढ़ना क्या है. दूसरा, लक्ष्मी इज वेरी वास्ट. लक्ष्मी इज वेरी वास्ट. उसमें बहुत कुछ है जितना कुछ आप पेपर में नहीं लिख पाते हो. तो अगर आप ये टेबल्स भी लिख लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू. हाँ उसमें तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती. लक्ष्मी वालों को थोड़ी दिक्कत होती है. डाउट पूछो बेटा. एक ही बच्चे ने पढ़ाई की, बाकी सबको आता है सब कुछ. तो इसके डाउट्स फिर आप ही लोग क्लियर करना. बता देती हूँ. इसमें है यूनिफॉर्मिटी लैक हो जाती है. कौन सी? डेवलपमेंट में. डेवलपमेंट में यूनिफॉर्म पैटर्न कभी चल ही नहीं सकता. ग्रोथ में दिया होगा, ग्रोथ में इंटरलिंक करके उन्होंने दिया होगा. दोनों के एक साथ लिखे हुए हैं ना. तो ग्रोथ में तो यूनिफॉर्म रहता है लेकिन डेवलपमेंट में लैक हो जाता है. डेवलपमेंट में एक सेकेंड अपनी नोटबुक से साइलेंटली पढ़ना है. डेवलपमेंट में यू डोंट हैव अ यूनिफॉर्मिटी. जब आप छोटे होते हो आपकी डेवलपमेंट ज्यादा हो रही होती है एट द एज ऑफ 5, 6, 7 टीनेज में हो रही होती है. क्योंकि जब आप ग्रोथ कर जाते हो, जब ओल्डर स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आपकी डेवलपमेंट डिक्रीज हो रही होती है ना. आपके आईक्यू लेवल डिक्रीज हो रहा होता है ना. और ग्रोथ में यूनिफॉर्मिटी रहती है. डेवलप उसकी जो ग्रोथ होती है ना वो यूनिफॉर्म तरीके से होती है क्योंकि वो एक स्टेज पर रुक ही जाती है. सेम रेस ना.
दैट मीन्स सेम एज की तो सेम यूनिफॉर्मिटी रहेगी। अगर मैं 5 साल की तो मेरे अंदर जो डेवलपमेंट होगी वही 5 साल के बच्चे के अंदर होगी। आप लिखोगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, उसके बाद आप डेवलपमेंट का लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी से दोगे और ग्रोथ का यूनिफॉर्मिटी से दोगे। ठीक है, किसमें बोल रहे हो प्रिंसिपल ऑफ, कहाँ लिखा है ये? दिखाओ क्या लिखा है मैंने, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली एंड लेटर डेवलपमेंट में क्या लिखा है? द अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड क्रिटिकल देन द लेटर डेवलपमेंट। ये वाला पॉइंट बोल रहे हो ना, यही तो है, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल। हाँ तो ये तो क्लियर है ना, जो बच्चा छोटा होता है उसकी डेवलपमेंट बहुत क्रिटिकल होती है। दिखाना क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली एंड लेटर डेवलपमेंट में वही तो पॉइंट लिखोगे कि अर्ली डेवलपमेंट जब होती है तो वो क्रिटिकल होती है, सेंसिटिव होती है, जिससे हम चाइल्ड को मोल्ड आउट कर सकते हैं। लेकिन लेटर डेवलपमेंट में वी डोंट हैव टू गिव मच एफर्ट्स, उसको चाइल्ड ऑलरेडी डेवलप्ड है। समझ रहे हो आप? क्या आप जो 10th क्लास को पढ़ाते हो आप सेम तरीके से पढ़ाते हो जो आप सेकंड को पढ़ा रहे हो? तो वही डिफरेंस इसमें लिखना है विद एग्जांपल्स, और यही एग्जांपल डाल देना चाहे तो। चलो, प्रिंसिपल्स में यू हैव टू गिव द प्रिंसिपल्स ओनली, हार्डली 10 प्रिंसिपल तुम याद कर पाओगे, बहुत सारे हैं। उनको एक्सप्लेन करना अच्छे से, पहले डेफिनेशन देना, फिर डिफरेंशिएशन देना, प्रिंसिपल्स देना, एजुकेशन इम्प्लीकेशन देना, हो जाएगा आंसर। कंक्लूजन जरूर देना आधे आधे पेज का, सॉरी। इतना नहीं कर पाओगे, पीरियड लिखाए है ना, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की पूरी टेबल बनाई होगी मैंने, वही करना बस। बस ज्यादा डेप्थ में जाओगे ना तो फिर एज के अंदर का भी पढ़ना पड़ेगा। देखो अब क्वेश्चन क्या आता है, या तो तुम्हारे शॉर्ट नोट में आएगा कि एक एडोसेंट एज में तुम्हारी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उससे तुम वो 6 एस्पेक्ट लिखवाए थे ना मैंने, इमोशनल, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल, लैंग्वेज, 6 एस्पेक्ट्स मैंने स्टार्टिंग की क्लास में लिखवाए थे, वो 6 के 6 एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आते हैं तो उसको लेके, या तो शॉर्ट नोट में आएगा और लॉन्ग नोट में आएगा तो विद इन थ्योरी आएगा, वो ऐसे एक पर्टिकुलर उसका नहीं रहते, थ्योरी से इंटरलिंक करके देते हैं वो। फिर इमोशनल डेवलपमेंट लिखाया था, हाँ एस्पेक्ट, हाँ वही जो 6 लिखाए थे ना, 6-7, उसको आप देख लो जिस पॉइंट को आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब 5-6 लाइन ही होती है हर किसी की, छोटा छोटा एक पैराग्राफ। हाँ इसमें क्या देखना है ये, हाँ आपने अच्छे से बनाए हुए हैं वैसे तो काफी एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशन, मैंने तो लक्ष्मी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है मैम आगे मैं कंफ्यूज लगा तो ज्यादा डिटेल नहीं ठीक है, जैसे छोटा छोटा लिखा है ना हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही करना। बट मैम ये यहाँ पे फिजिकल कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे अब नेक्स्ट ये सोशल अब स्टार्ट हो रही है, तो ये ज्यादा डिटेल नहीं हो गया फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल में आपने कॉग्निटिव डाल दिया ना, हाँ जी, फिजिकल किया फिर कॉग्निटिव किया फिर ये आ रहा है सोशल, हाँ ठीक है इतना ही करोगे, क्योंकि जब पेपर में लिखोगे ना तुम, हाँ बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, गुड, ये तुम्हें पेपर के टाइम पे बहुत हेल्प करेगी चीजें। इसीलिए नोट्स बनाए। जी इसको बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। और मैम इसके आगे से मैंने मैम लक्ष्मी में एक्सप्लेनेशन थी इसके पीरियड्स और इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन।
नहीं, बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं, ऐसे ही करना है। बस ये है ना कि जो जो तुम एक एक लाइन में लिख रहे हो ना पेपर में, इसको भी दो दो, हाँ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर अकॉर्डिंग टू योर आंसर। अगर तुम्हें बस टाइम है और तुम्हारी जगह बची हुई है तो तुम कर दो, ठीक है। और ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, जैसे ये स्टेजेस है तो इसको क्लाउड फॉर्मेशन में ऐसे करके सुंदर सुंदर से बना के लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। ये मैंने खुद बनाया है घर पे, आपके और बुक के मिक्स करके मिक्स ठीक है, तो ये माइनर पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। ये ग्रोथ का मीनिंग है पहले, और मैंने देखा आप तुम मीनिंग लिख रहे हो ना, तो तुमने किसी उसकी लिखी होगी डेफिनेशन, तो इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है। क्योंकि ना देखो इतना कोई नहीं पढ़ता, वो सीधा देखते अच्छा एल के फ्रेंड की थी, एल लॉ की थी, तो ये ठीक लिखा होगा पूरा, वो ऐसे देखते हैं। ये डेवलपमेंट पे ऐसे ही होगा। हम्म, तो ये डिफरेंशिएशन कर दिया तुमने, हाँ लॉ का दे दिया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। ठीक है। मैम मेरे को एक ये डाउट था, ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है यहाँ पे स्टेजेस जो मैंने तुम्हें लिखाया है ना, वही करो, वही तो मैम, पर इसमें तो ये जो इसको छोड़ दो। ये नहीं, ये जैसे इन्फेंसी का मतलब एक्सप्लेन किया हुआ, फिर ये दिए हुए हैं, तो हमने तो उसके अकॉर्डिंग किया ही, तो नोटिस में नहीं। हाँ, तो जो लिखा है ना वही करो, क्योंकि तुम्हें ना ये तो याद रहेगा जो मैंने तुम्हें लिखाए हैं 6 के 6 एस्पेक्ट्स, ठीक है, उसी को तुमने हर एक स्टेज पे डाल देना है, क्योंकि इसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट है, फिर फंस जाओगे। हाँ, क्योंकि ये इतना सारा याद ही नहीं कर पाओगे तुम। बुक पे मत जाओ, जो मैंने तुम्हें ये लिखा है ना जैसे स्टेजेस पे, ये है, इन्हीं फैक्टर्स को लेके तुम्हें हर एक स्टेज को एक्सप्लेन कर दो। अच्छा एक लिखो उसका, देख, फिजिकल डेवलपमेंट तुम्हारी इन्फेंसी में भी हो रही है, एडल्टहुड में भी हो रही है, सारी स्टेजेस में हो रही है, कॉग्निटिव भी, फिजिकल डेवलपमेंट लिख के फर्स्ट पॉइंट एडोलेसेंस के हाँ। अकॉर्डिंग, इन्फेंसी के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे कर दो, और इन 6-7 पॉइंट्स को ही तुमने हर एक स्टेज पे एक्सप्लेन करना है, क्योंकि तुम उसके थ्रू जाओगे ना, फिर तुम बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगा, और इतना टाइम है। यस, ये पूछना था लाइक जैसे ये है ना सारे, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट ये दिया हुआ है, ये सारे फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट, और फिर इसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट, ये करना है। सारे करने पड़ेंगे, सोशल डेवलपमेंट और उसके लिखाए हुए ना मैंने फैक्टर्स, उसी को देख के कर लो। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट, फैमिली क्या करती है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, फिजिकल हेल्थ, कम्युनिटी, ये सब पढ़ोगे ना जब तुम, तो तुम्हें आसान लगेगा। और फिर लास्ट में ये दिया हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी एनवायरमेंट सेंटर लिंक करके भी लिखाया हुआ है, वो भी करना है ये पूरा ही मतलब ये जो तुम पढ़ोगे ना, तो जस्ट गो थ्रू योर नोट्स एंड जस्ट गो थ्रू योर बुक एंड यू विल गेट। बातें क्यों कर रहे हो, छोटे बच्चे हो, पढ़ने के लिए टाइम दिया, अभी पूछूंगी तो कुछ आता नहीं होगा। हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंटल, इनको इंटरलिंक करके फिर इनका इफेक्ट्स क्या क्या आ रहा है वो सारा, और आर्गुमेंट्स, ये भी करना है। हाँ ये सारी करनी है, कॉन्सेप्ट भी करने हैं फिर। कॉन्सेप्ट ऑफ हाँ, जितना करवाए सारा करना पड़ेगा। लास्ट कौन सा टॉपिक रह गया इसमें से? मीडिया करवा चुकी हूँ, पेरेंटिंग स्टाइल में करवा चुकी हूँ। बुक में देखो कुछ रहता तो नहीं है फर्स्ट यूनिट में। आई हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट यूनिट, नाउ वी विल बिगिन विद द सेकंड यूनिट। बुक दो। बायोलॉजिकल फैक्टर होता है हमारे जो XY क्रोमोसोम्स होते हैं, XY क्रोमोसोम आर इन द मेल और XX क्रोमोसोम आर इन द फीमेल, उससे एक जायगोट बनता है, दैट इज योर बायोलॉजिकल, और उसी से हमारे अंदर हेरिडिटरी से कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज आवर सेकंड यूनिट। व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस? इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? You talk about the inclusive classroom. What is inclusive classroom? What is individual differences? लिखो individual differences refers to the okay, let us revise the first unit then. प्याजे की थ्योरी किसको करनी थी?
हाँ चलो अपने वो दो नोट दो प्याजे वाले जो लिखवाए थे मैंने तुम्हें। प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोलबर्ग की सोशल है, एरिक्सन की साइको सोशल है। भाई ऐसे तो मत बोलो। ओके, explain me the assumptions taken by the Piaget. Piaget ने assumptions लिए थे कौन के? स्कीमा, अडेप्टेशन, अकोमोडेशन, assimilation. Explain them one by one. Schema, what is a schema? When you prepare a concept in your mind, या when concept develop कर लेते, that is your scheme. Mental process. इसके नोट्स आप ले लेना, आपकी क्लास मिस हुई थी, इसके नोट्स 110% ले लेना क्योंकि प्याजे की थोड़ी आती है, ठीक है। सीटेट, केवीएट, डीएसएस भी सब में आती है, सारे जितने भी टीचिंग एग्जाम दोगे सब में आएगी, ठीक है। तो स्कीमा होता है जो हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन एक कॉन्सेप्ट को अपने अंदर एनहांस कर लेते हैं, दैट इज योर स्कीमा। योर अडेप्टेशन, व्हाट इज अडेप्टेशन? जब हम एक एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए अपनी नॉलेज